گورنر کے مشیر خورشید احمد گنائی نے کنج کا دورہ کیا۔ انہوں نے کئی وفود سے ملاقات کی۔ مشیر نے عوام کی مشکلات کے حوالے سے جانکاری حاصل کی اور ساتھ ہی متعلقہ افسران کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے خورشید گنائی نے سرحد کے قریب رہنے والے لوگوں کے لیے بنکرز تعمیر کرانے کے حوالے سے کہا کہ بنکرز تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو درپیش دیگر مسائل کو بھی دور کیا جائے گا۔ اس موقع پر پنچ کے ڈی سی راہل یادو بھی موجود رہے۔ لوگوں کے لیے ہم بنکرز بنا رہے ہیں۔ انہوں نے آج کئی جگہ سے ڈیمانڈ آئی کہ انڈیویجول بنکرز اور زیادہ ہونے چاہیے۔ کمیونٹی بنکرز بھی ہے لیکن انڈیویجول بنکرز بھی ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بالکل عین بارڈر پر رہتے ہیں ان کو زیادہ سہولیات یا زیادہ کنسیشنز ملنی چاہیے بنسبت کہ ان کے جو بارڈر سے دور رہتے ہیں۔ ابھی ایک ہی پٹی میں ایک جیسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن جو زیرو لائن جس کو کہیں گے ہم، تو وہاں کے لوگوں کو زیادہ سہولیات ملے، یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے۔ ڈاک بنگلو بارامولہ میں نومنتخب سرپنچوں کے لیے 3 ہفتے تک جاری رہنے والے ٹریننگ پروگرام کا آغاز ہوا۔ ٹریننگ پروگرام کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر بارامولہ ڈاکٹر ناصر احمد نقاش نے کیا۔ پروگرام کا مقصد سرپنچوں کو عوام کی خدمت کے لیے مختلف ذمہ داریوں کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا ہے۔ ضلع کے تمام سرپنچوں کو مرحلہ وار طریقے سے ٹریننگ دی جائے گی۔ ڈی ڈی سی نے پنچایتی راج ایکٹ کے تحت سرپنچوں کو ان کے فرائض سے واقف کرایا۔ ہماری جو منتخب سرپنچ صاحبان ہیں ان کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر آج یہاں پر ایک ٹریننگ پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ بہت ان کے لیے ضروری ہے تاکہ یہ اپنے جو ان کا جو منصب ہے اس میں جو ان کو جو فرائض ہیں ان کی جانکاری اس کو پوری طرح سے ان کو مل جائے اور یہ اپنا جو کام ہے اس کام کو وہ پوری دیانتداری سے اور اچھے طریقے سے انجام دیں۔ ضلع گاندربل کے نومنتخب سرپنچوں کو ٹریننگ دینے کا عمل شروع کیا گیا۔ پہلے مرحلے کے تحت صفاپورہ، لار، واکورہ اور شیر پتھری کے سرپنچوں کو ہری جھنڈی دکھا کر ٹریننگ کے لیے سری نگر روانہ کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر گاندربل شفقت اقبال کی نگرانی میں 39 نومنتخب سرپنچوں کو سری نگر روانہ کیا گیا۔ ٹریننگ کا یہ مرحلہ 4 روز تک جاری رہے گا۔ اے ڈی ڈی سی نے کہا کہ اس ٹریننگ کے ذریعے سرپنچ اپنے حقوق اور فرائض سے واقف ہو جائیں گے۔ ٹریننگ کے لیے گئے ہیں، یہ اچھی طرح سے اپنی ٹریننگ مکمل کر کے آ کر یہاں پر لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اسکیموں کے بارے میں ڈسکس کر کے ان کو عملانے کی اچھی طرح سے کوشش کریں گے تاکہ عام لوگوں کو گراؤنڈ لیول پر فائدہ ملے۔ حالیہ دنوں بین الاقوامی اور قومی سطح پر منعقدہ اسکائی مارشل آرٹ مقابلوں میں ضلع شوپیاں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ شوپیاں کے احسان بودا نے کوریا میں منعقدہ تیسرے بین الاقوامی اسکائی مارشل آرٹ مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ ضلع کے 4 کھلاڑیوں نے دہلی میں 64ویں اسکول گیمز میں 2 گولڈ اور 2 سلور میڈل حاصل کیے۔ ان کھلاڑیوں کو ضلع انتظامیہ اور سابق ایم ایل اے شوپیاں ایڈوکیٹ محمد یوسف بٹ نے مبارکباد دی ہے۔ جو ہماری یہ میسیج اب یوتھ کے لیے ہے، اس میں آ جاؤ، دیکھو اسکوپ ہے اس میں نیشنل، جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ گئے نیشنل کھیلنے کے لیے، اب سلیکشن آ رہی ہے ان کو انٹرنیشنل نیپال کے لیے، وہ وہاں بھی جا رہے ہیں۔ مجھے دہلی میں سلیکشن ہو گئی اسکول نیشنل 64 اسکول نیشنل، وہاں میں نے گولڈ نکالا۔ انشاءاللہ مجھے انٹرنیشنل کے لیے سلیکشن ہو گئی نیپال میں، انشاءاللہ وہاں پر بھی میں گولڈ نکالوں گا۔ اور میں اپنے ڈی سی صاحب کو شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا۔ ابھی حال ہی میں 64 نیشنل اسکول گیمز جو ہوئی نیو دہلی میں، اس میں 4 بچے جو ہیں شوپیاں کے، ان میں سے 2 نے گولڈ میڈل لیے ہیں اور 2 نے سلور لیے ہیں۔ اور اسی طرح اس سے پہلے ایک انٹرنیشنل اسکائی مارشل آرٹ چیمپئن شپ ہوئی تھی جس میں شوپیاں کے احسان بودا گئے تھے اور گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ گرو کی بات ہے کہ اور یہ چیز بھی دکھاتا ہے کہ یہاں کے بچے کتنے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو تھوڑی سی مدد کی جائے تو وہ کسی بھی فیلڈ میں بہت آگے جا کے اپنا اچھا نام بنا۔ سرکار پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے دعوے کر تو رہی، مگر کپواڑہ سے کرنا لنگیٹ تک ضلع کے درجنوں مقامات میں ابھی بھی لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ پیش کپواڑہ سے یحییٰ سلطان کی یہ رپورٹ۔ کپواڑہ ضلع کے کئی مقامات پر برف باری اور کڑاکے کی ٹھنڈ میں آج بھی لوگوں کو دور دور سے ندی نالوں تک پانی حاصل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ کرنا، لولاب، لنگیٹ، ہندواڑہ اور ترہگام میں آئے روز لوگ پانی کی قلت کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ پی ایچ ای کئی اسکیموں پر کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کئی علاقے پانی سے محروم ہیں۔
मामूली बर्फबारी से पानी की सप्लाई का निजाम दरहम बरहम हो जाता है। तो डीसी साहब के पास आया, हमने रिक्वेस्ट की, हमें पानी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, कोई स्कीम वहाँ नहीं मौजूद। हम 4-4 किलोमीटर दूर जाके 1.5 किलोमीटर दूर जाके हमारी लड़की पानी लाती हैं और वहाँ 3 फुट बर्फ़ पड़ती है, उसमें हम कहीं बर्फ़ जमा करके फिर अपना गुजारा पेश करते हैं। हमें कोई वाटर सप्लाई नहीं है। वोट मांगने हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, तो हम वोट डालते हैं, 90% वोट हम डालते हैं पूरे। हमें बाद में कोई नहीं, हमें बाद में मिला, आज तक कोई नहीं मिला। हमें पावर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कभी उसके बाद तो बस वोट लेते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते। उधर हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिवायती तौर पानी की बहाली के दावे करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर हालात मुख्तलिफ नजर आते हैं। चीफ इंजीनियर कश्मीर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जिला के दूर उफ्तादा इलाकों के लिए नई स्कीमें शुरू की जा रही हैं। पुरानी स्कीमों की मरम्मत के लिए भी रुकूमात वागुजार की जा रही हैं। सारा कुपवाड़ा में मिला के कम से कम 100 स्कीमों पे काम चल रहा है, जिसमें हमारा लिंग्वेशन के 62 स्कीमें हैं और इसी तरह नेशनल रूरल वाटर डिप्लाई स्कीम है, NRD जिसको हम बोलते हैं, नाबार्ड है, जिसमें से लगभग 30 के करीब स्कीमें इस साल मुकम्मल हो जाएंगी। बाकी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह जब मुकम्मल होंगे, जी हाँ, अगर कोई स्कीम जिसकी पाइप ख़राब हो गई है, वॉरन आउट हो गई है, अगर वो स्कीम में सच को कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उनके हम DPR बनाने जा रहे हैं। मैंने कहा इनका प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वो सबमिट करेंगे, तो अगले आने वाले वक्तों में हम उनके लिए भी फाइनेंस का इंतज़ाम करेंगे। उम्मीद की जा सकती है कि इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार होकर लोगों को इस कड़ाके की ठंड में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात करेगी। न्यूज़ 18 के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की रिपोर्ट। हजाम मोहल्ला पलहालन पटन के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बानिहाल बारामूला रेल सर्विस को भी रोक दिया था। एहतजाजी ट्रांसफार्मर की फराहमी की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि 25 दिन पहले उनका ट्रांसफार्मर जल चुका है। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने इस मसले को लेकर कई बार मुतल्लका महकमे की नोटिस में लाया, लेकिन वो आज तक टस से मस नहीं हुए। पटन पुलिस और SDM पटन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को यकीन दिलाया कि उनका मसला बहुत जल्द हल किया जाएगा। के लोग बिजली वाले तो उन्होंने सर्वे भी किया, उन्होंने जगह भी देखी है कि आपका एक ट्रांसफार्मर और लगेगा, लेकिन 6 महीने हो गए आज अभी तक हमारा ट्रांसफार्मर वापस नहीं आया। तो ये जो पुराना लगा है 250 kV का है, लेकिन ये खराब है। ट्रांसफार्मर करान गोरा की पत गई मजबूर ट्रेन बंद करने खातिर, मगर अख चीज लोन मेन त्रावान बिल दुकानदार निशिन लगान रेत पता बिल वोतम यह क्या मजबूर मो नौकर यह दुकानदार यह कर आलो या गर अन अगर यह तनख्वाह यह रटान यह कत रटान लोन में तनख्वाह। तो ये दरअसल चाहते हैं कि हमें एक और सब स्टेशन मिल जाए, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैं डिपार्टमेंट से मंगवाऊंगा। उसके लिए हमने सेपरेटली उनके साथ बात करनी है, लेकिन चूंकि इनिशियली जो है इनका ट्रांसफार्मर 3 दिन में ये वाला लग जाएगा, और इसके बाद जो इनकी जो सब्सिक्वेंट डिमांड है कि हम बहुत दिनों से चाहते हैं कि हमारा एक और ट्रांसफार्मर लग जाए, उसकी फिजिबिलिटी देख के ही हम कोई उसमें डिसीजन ले सकते हैं। डोडा में PDP की वर्कर्स यूनिट ने जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत पर जिला डोडा से इम्तियाज बरतने का इल्जाम लगाया। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से दूसरे अस्पतालों में मुंसलिक किए गए डॉक्टरों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल वापस लाने की अपील की। उनका कहना है कि अगर इंतजामिया 3 दिन के अंदर ENT डॉक्टर को वापस लाने में नाकाम रही तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। गुजारिश है, हमारा मुतालबा है कि डायरेक्टर हेल्थ का चार्ज हमारे DC साहब को दिया जाए या अलग से हमारा डायरेक्टर हेल्थ यहाँ पे बनाया जाए। यही हमारा संविधान है। बाकी आज तक हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। और गवर्नर साहब से भी हमारी गुजारिश है कि आप भी डोडा तशरीफ लाइए, हमें हमारी बात सुनिए, हम क्या कहते हैं, हमारा क्या मकसद है, और इसका इजाला जो है ऑन स्पॉट होना चाहिए। और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, अगर 3 दिन के अंदर अंदर ENT स्पेशलिस्ट यहाँ वापस नहीं आया, रेडियोलॉजिस्ट का कोई यहाँ इंतजाम नहीं किया गया, तो हम और इसके सड़कों पे आएंगे और बाद में जो है हमें ये नहीं कहें कि जो लॉ एंड ऑर्डर की पाबंदी।
बेरसा के चिल्ली पंगल के बाशिंदों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि चिल्ली पंगल तहसील में गुज़श्ता 1 महीने से तहसीलदार को तैनात नहीं किया गया। वहीं ब्लॉक जकियास में गुज़श्ता 1 साल से BDO की कुर्सी खाली है। लोगों का कहना है कि तहसीलदार और BDO की अदम दस्तयाबी की वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इलाके में तहसीलदार और BDO का तकर्रुर अमल में लाया जाए। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि फिलफौर हमें यहाँ BDO और तहसीलदार को भेजा जाए। एक यहाँ परमानेंट BDO दिया जाए। दूसरा हमारा मसला है जो तहसील का है, हमें तहसीलदार साहब 1 महीने से ट्रांसफर हुआ है, नायब तहसीलदार हमें आया नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ तहसीलदार को फिलफौर दिया जाए। सहूलियात की फरहमी की खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। पुलिस की तरफ से CCTNS नामी ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है। इससे लोग कई खिदमात हासिल कर सकते हैं। जराइम के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करने में भी लोगों को आसानी होगी। पेश है ये रिपोर्ट। रियासत में बढ़ते जराइम पर काबू पाने और शिकायत के अमल को आसान बनाने की गरज से जम्मू कश्मीर पुलिस ने CCTNS नामी ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। इस सहूलत के जरिए लोग अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने के बजाय घरों में बैठकर ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इससे न सिर्फ पुलिस स्टेशनों में लोगों की भीड़ कम होगी, बल्कि शिकायत कुनिंदा का वक्त भी बचेगा। असल में CCTNS जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे एक प्रोजेक्ट है। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि तमाम पुलिस स्टेशन जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएं और डिजिटल हो वो। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें क्राइम और क्रिमिनल्स का ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसको बोलते हैं। चूँकि अब मोस्टली जो है कुछ रिकॉर्ड हमारा डिजिटाइज हो चुका हुआ है और बहुत सारे जो रोज़नामचा डेली डायरी जिसको बोलते हैं वो भी ऑनलाइन है, FIRs भी ऑनलाइन है। तो एक सिटीजन पोर्टल हमने लॉन्च किया हुआ है। इनका कहना है कि इससे इन्हें पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने से निजात मिलेगी। लोगों का ये कहना है कि इस तरह के इक़दाम से बदनुआनी का भी खात्मा होगा। बहुत अच्छी बात है ये जो डिजिटलाइजेशन हुई है। इससे क्या होता, पहले देखो लोगों को स्टेशन जाना पड़ता था, कभी वहाँ SHO साहब नहीं होते थे, कभी वहाँ पे कोई ये भी शिकायत मिलती थी कि लोग सुनते नहीं है जी वहाँ पे। अब सीधे ये जो पोर्टल है उसमें वो अपनी कंप्लेंट भी डाल सकते हैं, इनफैक्ट उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। CCTNS जो पोर्टल लॉन्च किया है वो बड़ा अच्छा किया था। पहले जो लोग थे हमारी तरह, तो जो क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन FIR दर्ज कराते टाइम लगता था, सुनते नहीं थे या कुछ तल्ले वगैरह मारते थे या पैसे वगैरह लेते थे या किसी की। आजकल तो ऑनलाइन इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया, बंदा ऑनलाइन भी दर्ज करा सकता है। इसमें ना किसी की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या कुछ करने, जो हमारे से गलत हो सकता है हम ऑनलाइन वो कर सकते हैं। पुलिस के इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर भी मुल्क की उन रियासतों में शामिल हुई है जहां शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन खिदमात मैसर हैं। ताहम आम लोगों में इस हवाले से जानकारी और बेदारी पैदा करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से अंकित भट्ट की रिपोर्ट।